اور بے شک میں اذا ما جب ما زائدہ ہے، اذا ما جب فاتنی مجھ سے فوت ہو جاتی ہے الامر کوئی چیز، بے شک مجھ سے جب کوئی چیز فوت ہو جاتی ہے، لم ابھی تو میں رات نہیں گزارتا ہوں، فاتنی تو مطلب میں رات نہیں گزارتا ہوں، اقلب فکری اپنی فکر کو الٹتے پلٹتے یعنی سوچتے فکر کرتے رات نہیں گزارتا ہوں. یہ ترجمہ کریں، لم ابد اقلب فکری اپنی فکر یا فکر اور سوچ میں رات نہیں گزارتا ہوں، اس رہو اس کے پیچھے متندمہ افسوس کرتے ہوئے، متندمہ افسوس کرتے ہوئے. سمجھ میں آ گیا؟ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ مفہوم بھی واضح ہے. دنیا کی کوئی چیز فوت ہو جاتی ہے تو اس کے پیچھے افسوس کرتے ہوئے سوچتے ہوئے رات نہیں گزارتا ہوں. وَلَكِنَّهُ إِن جَاءَ عَفْوًا وَلَكِنَّهُ لیکن اگر کوئی چیز امر کی مسئلہ ہے، لیکن اگر لَكِنَّهُ لیکن وہ ان جاء اگر آئے عفواً بغیر مانگے قبول تو ہوں تو اس کو قبول کر لیتا ہوں. لیکن اگر کوئی چیز بغیر مانگے آ جا رہی ہے، کوئی ہدیہ پیش کر رہا ہے، تحفہ دے رہا ہے تو قبول تو قبول کرتا ہوں. وہ ان مالا اور اگر وہ مجھ سے پھر جاتا ہے، مالا یعنی لو مائل ہو جانا، اگر مجھ سے پھر جاتا ہے لم اتبعہ اللہ ولا تبع تو اس کے پیچھے اللہ اور اعتبا نہیں لگاتا ہوں، اس کے پیچھے اللہ اور اعتبا کو نہیں لگاتا ہوں. اتباع کا مطلب ہوتا ہے تابع بنانا. کوئی چیز فوت ہو جاتی ہے تو اس کے پیچھے اللہ اور اعتبا نہیں لگاتا ہوں. اللہ کا مطلب کیوں نہیں، اللہ اعتبا کا مطلب کاش کے، تو کاش کے اور کیوں نہیں اس طرح کی بات نہیں کرتا ہوں کہ وہ چیز فوت ہو گئی، کیوں نہیں میں نے یہ کر دیا تھا تاکہ یہ ضائع نہیں ہوتی ہے، یا کاش کی یہ چیز نہیں گم ہوتی. اس طرح کے اللہ اور اعتبا کو اس کے تابع نہیں ہے، اس کے پیچھے نہیں کرتا ہوں. پھر سے دیکھیں، وَلَكِنَّهُ لیکن اگر وَلَكِنَّهُ إِن جَاءَ لیکن اگر وہ چیز آ جاتی ہے عفواً بغیر مانگے، فری فنڈ میں مفت میں، قبل قبول تو اسے قبول کرتا ہوں. وَإِن مالا اور اگر وہ مجھ سے پھر جائے لم اتبعہ اللہ ولا تبع تو اس کے پیچھے اللہ اور تبع نہیں کرتا، اللہ اور تبع کو اس کے تابع نہیں بناتا ہوں. مطلب اس کے بعد جب چیز گم ہو جاتی ہے تو یا کھو جاتی ہے تو اس کے پیچھے اللہ تبع وغیرہ نہیں کرتا. اپنے جو میں سمیٹ لیتا ہوں، اپنے جو سمیٹ لیتا ہوں، اپنی اپنے قدم کو سمیٹ لیتا ہوں، یعنی اپنے قدم کو روک لیتا ہوں. یہ ترجمہ کیجیے، اپنے قدم کو روک لیتا ہوں. عن حظوظ کثیرۃ بہت سی نعمتوں سے، بہت سی نعمتوں سے یا سہولتوں سے. حظوظ کی جمع حظوظ، حظوظ کہا جاتا ہے حصہ، حظوظ پر حصہ یا ما یحتسب ہے جس سے لذت حاصل کی جائے، جس سے محظوظ ہوا جائے. شعراء کہتے ہیں محظوظ ہو رہے تھے اسی سے پر لوگ جس سے ہوا جائے. تو بہت سی چیزوں سے میں اپنے قدم کیا کرتا ہوں، بہت سی لطیف چیز، بہت سی پرلطف چیزوں سے یا بہت سے حصوں سے، لفظی کلمات سے حصہ ہوگا، بہت سے حصوں سے میں اپنے قدم روک لیتا ہوں. خاطیہ افعال ہے، بہت سی پرلطف چیزوں سے، چیزوں ترجمہ کر لیجیے، بہت سی پرلطف چیزوں سے اپنے قدم روک لیتا ہوں. اذا جب لم انلھا
मैं उन्हें ना पा सकूं। वाफिरत इर्ज़े कामिल इज्जत के साथ मुकरिमा शराफत शरीफ होकर के, मुकरिमा का मतलब मुकरिमा नहीं मुकर्रमा बनेगा। वाफिरल इज्जे और मुकर्रमा, वाफिरल इज्जे मुकम्मल इज्जतदार होकर, मुकर्रमा और शरीफ होकर। तो मुकम्मल इज्जतदार और शरीफ होकर अगर कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकता तो फिर घटियापन और घटिया हरकतों के जरिए में उसको हासिल नहीं कर सकता। फिर से देखिए, अब मैं जो खतरी अपना कदम रोक लेता हूँ अब हुजूर तकीरती बहुत सी चीज़ों से, इज़ा लहा जब मैं उन्हें ना हासिल कर सकूँ, वाफिर दिल से मुकम्मल इज्जतदार होकर, मुकर्रमा और शरीफ होकर। ठीक है ना, वाज़ेह है। वो उकरेमो नफ्सी अन उज़ाहिका आदेसन व अन अतलक्का बिल वदीह मुज़म्ममा। उकरेमो और मैं उकरेमो नफ्सी अपने नफ्स को बचाता हूँ, मुअज़्ज़म रखता हूँ। उकरेमो ताज़ीम करना, मुअज़्ज़म रखना, अपने नफ्स को मुअज़्ज़म यानी बचा के रखता हूँ। अन इस बात से कि उज़ाहिका हंसी करूँ, आबेसन इसी शुरू से। अब ऐसा यहाँ का मतलब होता है तेवरी चढ़ाना, तेवरी चढ़ाना जो आदमी तकब्बुर करता है, घमंड करता है, वो क्या करता है, तेवरी चढ़ाता है, खुशबू इख्तियार करता है। किसी को कहा जाता है आबसा, हमारे पास में है आबसा वतवल्ला, एक नाबीना उसके पास आ गया तो उसने तेवरी चढ़ा दी और वो भेज दिया। आबसा वतवल्ला, तेवरी चढ़ाई और वो के बारे में है। एक वो नाबीना आया लेने के लिए कुछ मदद, तो उसने तेवरी चढ़ाई और वो सबका नहीं दिया। उकरेमो नफ्सी मैं अपने आप को मुअज़्ज़म रखता हूँ इस बात से उज़ाहिका आदेसन कि किसी तकब्बीर या सुरखरू शख्स से हंसी करूँ। वह अन अतलक्का और इससे इस बात से अपने आप को बचा के रखता हूँ, अन अतलक्का कि मैं मुलाकात करूँ बिल मदीह तारीफ के साथ, मुज़म्ममन किसी मज़मूम की, किसी बुरे आदमी की मैं तारीफ के साथ मुलाकात करूँ, इससे अपने आप को क्या करता हूँ, बचाएगा। इसका हासिल क्या है, बुरे आदमी की तारीफ नहीं करता और किसी मुतकब्बिर की भी चापलूसी नहीं करता, या उसके साथ घुल मिल के नहीं रहता। अतलक्का किस बात से होगा, ठीक। मदीह के मतलब तारीफ, नाम, और मुज़म्ममा का मतलब जिसकी मज़म्मत की जाए, यानी जो बुरा। तो किसी बुरे आदमी की तारीफ के जरिए मुलाकात करने से मैं अपने आप को बचाए रखूँगा। समझ में आ रहा है भाई। वकम तालिबे रुकिन बेनुमा हो लम यसी इलैहि व इन आना लकीसन मुअज़्ज़मा। अरे एक शेर और है उससे पहले इसमें, वकम तालिबे रुकिन, और कितने तरक्की के तालिब हैं, कम तालिबे रुकिन बेनुमा हो अपनी नेमत के बदले, अपनी दौलत के बदले कितने ही तरक्की के तालिब है। गलत लिखा है नहीं है तो उसको लिख लीजिए, किताब में लिख लीजिएगा। कम तालिबे रुकिन बेनुमा हो लम यसिल। कम तालिबे रुकिन, तालिबे रुकिन ये क्या है, यानी तरक्की के तालिब, बेनुमा हो अपनी नेमत के बदले में, यानी अपनी दौलत के बदले में कितने तरक्की के तालिब हैं। लम यसिल जो नहीं पहुँचे, इलैहि तरक्की तक, इलैहि में जो हाल में है वो मुखातब राजे है। तो कितने तरक्की के तालिब हैं जो अपने दौलत के बदले में, अपनी दौलत के बदले में कितने तरक्की के तालिब तरक्की तक नहीं पहुँचे। समझ आएगा।
यानी बहुत से लोगों ने अपनी दौलत के बदले में तरक्की को पाना चाहा तो लम यसिल इलैहि, तरक्की तक नहीं पहुंचे। वह इंसान रईसन मुअज़्ज़मा, अगरचे वो काबिले, अगरचे वो अजमत वाला रईस था, अगरचे वो अजमत वाला रईस था, सरदार था, अगरचे वो अजमत वाला रईस और सरदार ही क्यों रहा। वकम नेमतिन कानत अलल हुर्रे रकमतन वकम नेमतिन यातबहुल हुर्रो मकरमा। कम नेमतिन, कितनी नेमत है, कानत अलल हुर्रे, जो आज़ाद शरीफ इंसान पर, रकमतुन, अज़ाब है, बला है, रकमतुन मतलब इंतकाम, सज़ा है, सज़ा करना। और कितनी नेमत है जो एक शरीफ इंसान पर क्या है, सज़ा है। वकम नेमतिन, और कितनी नेमत है, या कदरू, जिसको शुमार करता है, अल-हुर्रो, आज़ाद इंसान यानी शरीफ इंसान, मग़रमन, तावान, जुर्माना समझता है। और कितनी नेमत है जिसे एक शरीफ इंसान जुर्माना समझता है। यानी एक शरीफ इंसान नेमत और दौलत वगैरह को जुर्माना समझता है या फिर उसको क्या समझता है, सजा समझता है। अल्लाह वालों ही तो देख लीजिए, वो गुर्बत की जिंदगी को पसंद करते हैं, अमीरी को बहुत समझते हैं। वलम अब्तज़िल फी खिदमतिल इल्म मुहजती लिअख़दिमा मन लाक़ैतो लाकिन लिउख़दमा। वलम अब्तज़िल, मैंने खर्च नहीं किया, फी खिदमतिल इल्म, इल्म की खिदमत में, मुहजती, अपनी जान, मैंने इल्म की खिदमत में अपनी जान नहीं लगाई, अपनी जान नहीं लगाई, खर्च नहीं की। ले अख़दिमा, इसलिए खर्च नहीं की, ले अख़दिमा कि मैं खिदमत करूँ, मन लाक़ैतो, उसकी जिससे मुलाकात करूँ, जिससे मुलाकात करूँ, उसकी खिदमत करूँ, इसके लिए मैंने अपनी जान नहीं लगाई। लाकिन ले उख़दमा, हाँ, इल्म की खिदमत में मैंने अपनी जान इसलिए लगाई ताकि उख़दमा, ताकि मेरी खिदमत हो, मेरी खिदमत की जाए। यानी खादिम बनने के लिए इल्म के पीछे नहीं लगा, बल्कि मखदूम बनने के लिए इल्म के पीछे लगा। समझ में आई भाई बात? हो जाएगा ना। अस्ती में ही गरसन, अस्ती में ही वो छोटी सी रीत होगा आता है और हो सकता सका यस्ती का होगा और सत्या ना होगा। हाँ भैया, तो पहले ही बताया कि सोल्यूशन गलत है, सब भी कर रहे हैं। अस्ती बही गरसन, क्या मैं इल्म के जरिए एक पौधे की आबियारी करूं, एक पौधे को पिलाऊं, इल्म के जरिए एक पौधे को पिलाऊं, वह अजनी है जिल्लतन, और उसके बदले में जिल्लत काटूं, जिल्लत का फल तो अस्ती बही गरसन, क्या मैं इल्म के जरिए एक पौधे को सैराब करूं, वो अजनी है जिल्लतन, और उसके बदले जिल्लत चुनूं, जिल्लत तोड़ूं, जनाइजी मतलब फल तोड़ना। इज़न तब तो फत्तबाउल जहले, जहालत की पैरवी करना, फरकाना अहला, ज़्यादा अहवत होता, तब तो जहालत की पैरवी करना ज़्यादा होशियारी वाला काम होता और अहवत होता। बात समझ में आई कि नहीं? अहवत नहीं समझते हैं, हाँ? पूरा शेर ये बताना चाहते हैं कि मैंने इल्म हासिल इसलिए नहीं किया है कि लोगों की जाके तारीफें करूं, जमीन आसमान के कलाबे मिलाओ तारीफों से और उसके लिए नोट बटोरो, अगर बल्कि मैं इसलिए इल्म हासिल कर रहा हूँ कि काबिल ताज़ीम समझा जाऊँ, लोग मेरी खिदमत करें,
मैं जाकर के उनकी शान न बढ़ाऊँ। अब अगर मैंने अपने इल्म को लगा दिया किसी की तारीफ करने में, सिंचाई करने में, और उसके बदले में मैं जिल्लत हासिल करूँ यहाँ वहाँ जाकर के, यानी किसी दरबारी शायर बनूँ या कोई इस तरह का, तो इसके लिए नहीं हो। अगर यही बात होती तो फिर जाहिली आना ज़्यादा बेहतर था, ये बताना है। इज़न तब तो फत्तबाउल जहले, जहालत की पैरवी करना, फरकाना अहदमा, ज़्यादा अहवत होता या होशियारी वाला काम होता। अहजम ज़्यादा होशमंदी, ज़्यादा होशियार, इसमें तफजील है, ज़्यादा हज़्म वाला यानी ज़्यादा चालाकी वाला, होशियारी वाला। वलो अन्न अहलल इल्म सानूहु सानहुम वलो अज़मुहु फी रुकूसे ला ज़मा। वलो अगर अन्न अहलल इल्म, इल्म वाले, सानूहु इल्म की हिफाजत करते, अगर इल्म वाले इल्म की हिफाजत करते, साना इसमें का क्या माना होता है? इस बात से हुआ सानहु इल्म भी उनकी हिफाजत करता। अगर इल्म वाले जिल्लत की जगह में अपने इल्म को ना फेंकते है ना, तो इल्म भी उन्हें जिल्लत की जगह में नहीं फेंकता, ये बताना है। तो इल्म भी उनकी हिफाजत करता। साना में हुआ आदमी इल्म है, चित्र लाजे है। वला अज़्ज़मुहु, और अगर अहले इल्म की ताज़ीम करते फिर रुकू से अपने दिलों में, अगर इल्म वाले दिलों में इल्म की अजमत बैठाते, क्या करते? दिलों में इल्म को मुआज़्ज़म रखते, ना अज़्ज़मा, तो इल्म भी उन्हें काबिल ताज़ीम बना देता है। इल्म भी उनकी अजमत बढ़ा देता, उन्हें मुआज़्ज़म कर देता और उनकी ताज़ीम करता। वलाकिन अहानूहु, लेकिन अहले इल्म ने इल्म की तौहीन की। अहानूहु, अहले इल्म ने इल्म की तौहीन की। बादशाहों, मालदारों, दरबारों में ले जाकर के उसकी गवैया बन करके लौट डूबते रहे, ताज़ीम की। फहाम हल्के हो गए, इल्म को हल्का किया तो खुद ही हल्के हो गए, इल्म को जलील किया खुद ही जलील हो गए। पहला वाला है अहानू और दूसरा वाला है हानू। अहाना यूनो इहानतन, तौहीन करना, और हाना यहूनो औरन के माने हैं जलील होना, तौहीन होता है तो काला हो जाना, यानी हल्का हो जाना। लेकिन वलाकिन अहानू हो, लेकिन अहले इल्म ने इल्म की तौहीन की, फहाम के खुद ही जलील हो गए। वतन्नसू वहय्याहो, तन्नसू और आलूदा कर दिया, नापाक कर दिया, वहय्याहो इल्म के चेहरे को, बिन आत्माए लालच से, तमन की जमात अतमा, मैंने तो हिर्स और लालच से उसके चेहरे को गंदा कर दिया, आलूदा कर दिया। हत्ता तजहमा, यहाँ तक के ये खुद ही हत्ता तजहमा, यहाँ तक के इल्म क्या हो गया? आलूदा हो गया। तजहमा में वो आदमी की तरफ आ गए, क्योंकि अहले इल्म के लिए तो जमा कर देना इस्तेमाल होगा, यानी अहले इल्म ने इल्म की ताज़ीम नहीं की और उन्होंने उसको अपने ख्वाहिशों और अपने हिर्स का निशाना बना दिया, है ना। उसको अपने लालच से आलूदा किया, तो ये इल्म क्या हो गया? आलूदा हो गया। जब इल्म आलूदा हो गया तो फिर ये कैसे बढ़ाएगा? देखिए, हत्ता तजहमा, यहाँ तक के इल्म को भी आलूदा हो गया। वमा कुल्लु बातिन ला अली यस्तफिज़ुनी वला कुल्लु मलकिन अर्ज़े अल्लाहु। वमा, और नहीं है, कुल्लु बातिन हर चमक, लाहाली जो मेरे लिए चमकी, लाहाली वो का चमक होता है, मतलब हर चमकने वाली रोशनी। तो हर चमकने वाली रोशनी इससे मुराद है कि हर चमकदार चीज, हर चमकदार चीज। तो हर चमक मेरे लिए, हर चमकदार चीज या मेरे लिए हर वो रोशनी जो मेरे लिए चमकी, ये तफीज़ोनी, मुझे लड़खड़ाती नहीं है, डगमगाती नहीं है, ये मेरे कदम को जगह से हटाती नहीं है। ये मुतज़लज़ल नहीं कर सकते,
ये समझ में आया कि भाई वाला देखिए माँ कुल्लो बर्तिन हर वो रोशनी लाहाली जो चमकी मेरे लिए या तफीज़ोनी मुझे डगमगा नहीं सकती, मुझे मुतज़ल्ज़ल नहीं कर सकती, इसका फज़ा इसके जो मुतज़ल्ज़ल कर मुझे वाला कुल्लो मन के अर्दे अर्दा हो मुनइमा। देखिए और नहीं हर वो शख्स जो जमीन में इनाम करने वाला है उसको मैं पसंद करता हूँ, यानी मैं हर ऐसे शख्स को पसंद भी नहीं करता जो इनाम करने वाला है। तो तर्जुमा यूँ होगा, देखिए असली इबारत ये होगी कि कुल्लो मनफिल अर्दे मुनइमन, इनाम करने की हैसियत से मुनइमन लग जाए, कुल्लो मनफिल अर्दे मुनइमन, हर वो शख्स को इनाम करने की हैसियत से जमीन में है ला अर्दा, मैं उसे पसंद नहीं, हर वो शख्स जो जमीन में इनाम करने वाला है तो उसे पसंद नहीं करता, नजराने और छूट लेने को मैं पसंद नहीं करता, ये बताना चाहता है। वलाकिन इज़ा मस्तरनी ज़ुर्रो लम कबित उक़ल्लिबु फ़िक्री मुजद्दन सुम्मा मुतहिमा, वलाकिन लेकिन इज़ामा जब इस्तरनी मुझे दरपेश होती है या मैं दो चार होता हूँ, इज़ा इस्तरनी ज़ुर्रो जब मुझे तकलीफ दरपेश होती है, मुसीबत दरपेश होती है, लम कबित तो रात नहीं गुजारता, उक़ल्लिबु फ़िक्री सोचते हुए तो कल वो फिक्र अपनी फिक्र को पलटते हुए अपनी फिक्र को उलटते मुनजदन नजद में मुतहमन तिहामा में, तो नजदो तिहामा में अपनी फिक्र को उलटते पलटते रात नहीं गुजारता। मुनजदन का माना होता है नजद में पहुंचाना और मुतहमन का मतलब होता है तिहामा में पहुंचाना, तो अपनी फिक्र को नजदो तिहामा में पहुंचाते हुए रात नहीं गुजारता हूँ। इला अनकारा माला अबुसु बेजिक्रिही इला कुल्लो कद अस्दा इलिया व अनअमा, इला अन यहाँ तक के अरा मैं देख लेता हूँ माँ उस चीज़ को ला अबुसु बेजिक्रिही जिसके जिक्र से मेरा दम न घुटे। वसा गुस्सो होता है किसी के गले का फंस जाना, गले में कोई चीज़ अटक जाना, तो तर्जुमा होगा इला अन यहाँ तक के अरा मैं देख लेता हूँ चीज़ को कि जिसके जिक्र से मेरा दम ना घुटे, मेरा गला ना फंसे, यानी मैं जब तक ये नहीं देख लेता हूँ कि इसको कहने या बोलने से कहीं मेरा दम तो नहीं घुटेगा, यानी मेरा गला तो नहीं फंस जाएगा, गला नहीं फंस जाएगा, हाँ इस तरह की मैं तो कहीं मुब्तला तो नहीं हो जाऊँगा, ये अथवा तो नहीं लगेगा कि आज के दौर में यही होता है। तो अपनी फिक्र को लज्जो के हामों में बढ़ाते हुए जैसे यहाँ से तलबा है बैठे रहते हैं, इधर तकलीफ होती रहती है और अपनी फिक्र को कहीं और बढ़ाए हुए होते हैं, बाजार में तो कहीं घर में तो कहीं किसी और मुल्क में, नहीं समझ आएगा तो ये बढ़ाते रहते हैं। इसी तरह इसके कहने का मतलब यह है कि अगर मुझे कोई तकलीफ पहुँच जाती है तो मैं रात को करवटें बदलते हुए और अपनी सोच और फिक्र को इधर उधर घुमाते हुए नहीं गुजारता हूँ, मैं तो ध्यानों में घुमाते हुए यहाँ तक कि मैं देख लेता हूँ वाला ही ऐसी चीज़ जिसको बयान करने से मुझे मेरा दम ना घुटे, मैं ना फंसूँ, इला तो जब कहूँ कद अस्दा इलैया तो उसने मुझ पर एहसान किया, मानामा और इनाम किया, यानी जब मैं ये कहूँ कि उसने मुझ पर इनाम किया एहसान किया तो ये कहने में जो मेरा दम नहीं घुटता कभी इस तरह की बात करता हूँ और मैं यही चापलूसी नहीं करता। वक़ाल आखिर एक दूसरे शायर ने कहा है वला तत्तकिल इल्ला अला मा फ़अलतहु, ला तत्तकिल तू तवक्कुल या तेरे भरोसा कर, तू भरोसा कर किस बात से है ला तत्तकिल मत तालीलो एजरीफी है, कौन सी तालीम की जानी होती है हल मिल रहा है क्या था करना था सही
वला तत्तकिल, तू तवक्कुल भरोसा ना कर इल्ला अला मा, मगर उस पर फालतू नहीं किया, यानी खुद अपने किरदार अपने काम पर भरोसा कर। वला तहसबन्नल मजदा यूरसु बिन नसब, और हरगिज ना समझना कि अजमत नसब के जरिए विरासत में मिलती है, यानी अजमत और बुजुर्गी कोई बहुत सी चीज नहीं है कि जो नसब से खानदान से किसी से मिल जाए, ये हरगिज मत समझना। वला तहसबन्ना, और हरगिज ना समझना अल मजदा यूरसु बिन नसब के अजमत नसब के जरिए खानदान के जरिए विरासत में मिलती है। फलैसा यसुदुल मरो इल्ला बिनफ्सिही व इन अद्दा आबाअन किरामत जरी हसन। फलैसा यसुदुल मरो, बेशक इंसान सरदार नहीं होता, जैसे यसुदो सदा यसुदो तुम सरदार हो, इंसान सरदार नहीं होता है इल्ला बिनफ्सिही, मगर अपनी जात की बदौलत, मगर अपनी जात की बदौलत, यानी अपने जाती किरदार की बिना पर कोई भी सरदार होता है। वह इन अद्दा, अगरचे वो शुमार करे आबाअन बाप दादाओं को किराम, अगरचे वो मुअज़्ज़ज़ बाप दादाओं को हसन नसब वालों को शुमार करे, यानी कहे कि मेरा बाप ऐसा था वैसा था, मेरे दादा ऐसे थे, तो अगरचे वो मुअज़्ज़ज़ बाप दादाओं को मुअज़्ज़ज़ हसन नसब वाले बाप दादाओं को शुमार करे, तभी वो सदा नहीं होता, मगर अपने सवाल के बिना। इधर गुस्लो लम युस्मिर, जब शाख फल ना दे, जब शाख फल ना दे या फलदार ना हो, तो वह इनका शोबतम मिनल मुस्मिरा, अगरचे वो फलदारों की जिनके का हिस्सा हो, वही तरह शोबतम मिनल मुस्मिरा, अगरचे वो फलदारों में का एक हिस्सा हो, फल वाली दरख्त का एक हिस्सा क्यों ना हो, एक तब हतब लोग उसे ईंधन ही में इस्तेमाल करते हैं। एकद्दहु, अतः उर्दू से बाकी इख्तियार में लिखी चले जाएगी, एकद्दा बन जाएगा। एकद्दहु लोग शुमार करते हैं फिलहाल में लकड़ी में, यानी घर में लकड़ी में शुमार करते हैं, जलाने के काम ही लाते हैं उसको। फलदार दरख्त की शाख हो, अगर फल ना आए तो उसको किस मसरत में ले जाया जाए, नहीं न बनाने के अलावा कोई काम नहीं सकता। वक़ाल अब्दुल्लाह बिन मुआविया बिन अब्दुल्लाह बिन जाफर हाशमी, अब्दुल्लाह बिन मुआविया बिन अब्दुल्लाह बिन जाफर हाशमी ने कहा है, लसना व इन करोत कवाइदुना यौमन अलल अहसाब नत्तकी। लसना, ये असली इबारत है लसना नत्तकी, क्या है नत्तकी, मक्तबी के अखीर में है नत्तकी, लसना नत्तकी, हम भरोसा नहीं करते है। कहाँ? अलल अहसाब, खानदानों पर, अलल अहसाब खानदानों पर हम भरोसा नहीं करते। वह इन करोत कवाइदुना यौमन, तो ये यौमन इसी मुतालिक है। असली इबारत की लसना नत्तकिलो अलल अहसाब यौमन, हम किसी दिन खानदानों पर भरोसा नहीं करते। वह इन करोत कवाइदुना, अगरचे हमारे असलाफ मुअज़्ज़ज़ थे, अगरचे हमारे असलाफ क्या थे मुअज़्ज़ज़ थे। नबनी व्यवहार है, छोड़ना वहाँ पे नबनी, हम तामीर करते हैं, हमारा कानत अवाइलुना तबनी, जैसा कि हमारे असलाफ तामीर करते थे, न फालो, और हम करते हैं इसला फालो, जो इस तरह से पूरा करता है, यानी हम कोई काम करके अपने किरदार से मदद करके ही हासिल करना है। आखिरी वाला तो और आसान है, पढ़िए उसको। नबनी कमा कानत अवाइलुना, नबनी हम तामीर करते हैं, कमा काना आबाओ न तबनी, जैसा कि हमारे आबाओ अजदाद तामीर करते थे जी, और वो इसी करते हैं जैसे वो लोग करते थे। फासिक